Hare Krishna. So we are on the 58th verse of the second chapter. Krishna gives a very very beautiful example, a very practical teaching. अरे अब तक जो मैंने बताया वो कैसे करें, कैसे अपने जीवन में एक्चुअली समझें उसे. Krishna says, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. We see Krishna has always been speaking about prajna, 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 jna, jnana, knowledge. Prajna, प्रत्यक्ष ज्ञान, actual verifiable knowledge. जो व्यक्ति ज्ञानी है वो जीवन में एक सिम्टम्स से दिखता है. केवल पुस्तकी ज्ञान पढ़ लिया इसका मतलब वो ज्ञानी हुआ क्या? नहीं. जब तक जीवन कैसे जीना है वो नहीं सीखा तब तक वो ज्ञानी नहीं है. प्रज्ञ, प्रत्यक्ष रूपेण ज्ञ, ही इज एक्चुअली अ ज्ञानी. कौन है वो? कृष्णा सेज दैट one who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. We see in the second chapter, 13th, 14th verse, Krishna had given a very beautiful example. To understand the difference between body and soul, he had said, oh, just like you take a dress and you take out a dress, but you are not the dress. ड्रेसेस बदलते रहते हैं, आप सेम रहते हैं. उसी प्रकार से ये शरीर आपके आत्मा का ड्रेस है. आत्मा ये ड्रेस पहनेगा, थोड़े समय में छोड़ देगा. यस. सो ड्रेस पहनोगे तो रोज धोना भी तो पड़ेगा. ड्रेस धुलना, अब आप कपड़े को पूछो भाई तुमको 2 घंटा गर्म पानी में भिगोया जाता है, बाद में खच्चक 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 धोया जाता है, तुमको कैसा लगता है? कपड़ा बोलेगा मेरे को बहुत बुरा लगता है. ये शरीर भी ऐसा ही है. जीवन आ गया, अब प्रकृति उसको गर्म पानी में डुबो के खच्चक खच्चक धो रही है. हमको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है. सेम वे कृष्णा सेज विड्रॉ योर सेंसेस. हाउ? कृष्णा गिव्स एन एग्जांपल. जस्ट लाइक अ टॉर्टोइस, व्हेन अ टॉर्टोइस सीज डेंजर, immediately withdraws senses. What happens when the tortoise withdraws himself up? Above he has a very hard shell. That shell will protect him. That shell is the shell of Krishna. Yes. When we withdraw our senses, then what is visible outside is only the hard shell of Krishna's protection. We are protected. But when that same tortoise goes upside down, he is most vulnerable. वो खुद अपने आप सीधा भी नहीं हो सकता, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और कुत्ते या पक्षी आके उसे खा लेंगे. So an upside down tortoise is like we who are vulnerable or making ourselves vulnerable to Maya. As long as we are the right side up, the upside up, we are with Krishna. So we see, what does this tell us? Whenever danger, immediately. When there is danger, everywhere there is danger. Krishna says that indriyani indriyarthebhyah. Indriyani, senses. Indriya artha. Artha means something valuable. What is valuable to our senses? आंखों के लिए सुंदर फॉर्म is valuable. नाक के लिए सुगंध is valuable. जिह्वा के लिए टेस्टी फूड is valuable, उसके लिए वो अर्थ है. कानों के लिए कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, it is अर्थ. Yes. For touch, soft objects is अर्थ. So as long as इंद्रिय अर्थ के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, there is danger. There is danger. As long as senses are withdrawn from indriyas, are withdrawn from indriya artha, no problem. As soon as indriya goes with indriya artha, immediately problem. Yes. So Krishna says इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः. विषय वस्तु भोगने के लिए ही जीवन है, लेकिन अगर भोगते रहे तो विड्रॉ कब करेंगे? और फिर प्रज्ञा स्थित कैसे होगी? नहीं हो सकती.
So Krishna says that what happens when we actually let our senses loose? We are like that upside down tortoise. When we are actually in control of our senses, just like we can see how powerful a devotee is, what is the gold or platinum standard of devotional service? जैसे ही कछुए को लगता है डेंजर है, इमीडिएटली वो अंदर ले लेता है, वो सोचता नहीं है। उसी प्रकार से जैसे ही इंद्रिय विषय वस्तुओं के संपर्क में आ रही हैं, तुरंत एक व्यक्ति को इतना अपने ऊपर स्वावलंबन होना चाहिए कि वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर ले अपनी इंद्रियों को। क्या है हमारी स्थिति ऐसी? नहीं है। हम तो ढूंढते रहते हैं कहां मिलेगा, भूखे शेर की तरह, कहां इंद्रिय भोग मिलेगा, कहां इंद्रिय भोग मिलेगा। इफ यू हैव बीन टू विष्णु टेम्पल्स यू विल ऑलवेज सी, भगवान विष्णु के टेम्पल के अंदर जाते समय आपको एक कछुआ दिखाई देगा, कूर्मोंग अन्नीवा। क्यों है वो? व्हाट डज दैट सिग्निफाई? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशन। द एंट्रेंस टू विष्णु's temple there is tortoise. So the Shastras tell us why that tortoise there. It tells us inside the temple premises you are free. Let your senses loose. अपनी इंद्रियों को खुला करो, भगवान की सेवा करो। मंदिर से जैसे ही बाहर जाओगे you are prone to attack of Maya. Withdraw senses. हम क्या करते हैं? हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। मंदिर में जाते हुए अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेते हैं, निकल जाते हैं, और जैसे ही बाहर जाते हैं भुक्कड़ शेर की तरह हर जगह ताव मारते रहते हैं। तो फिर प्रज्ञा प्रतिष्ठित कैसे होगी? होगी ही नहीं। यस, सो कृष्णा इज गिविंग वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, हाउ टू सी, हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बी एस्टैब्लिश्ड इन गुड कॉन्शियसनेस। अनलेस वी नो दैट the senses are meant for the pleasure of Krishna, that's it. Rishikena Rishikeshah Sevanam Bhakti Ruchyate. Senses are not meant for enjoyment, they are meant for pleasing Krishna. बस और कुछ नहीं है। तब तक प्रज्ञा स्थित नहीं होगी। Thank you very much. हरे कृष्ण। Krishna Krishna Krishna